This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yeah. In acceptance sampling plan, we accept or reject the lot on the basis of a sample. And but the main drawback of the acceptance sampling plan is that in acceptance sampling plan, when the lot is rejected, then this is a huge loss of the manufacturer. And to recover this, to save this loss, rectify sampling plan has come in the light. And in this rectify sampling plan, procedure is same, but rejecting the entire load on the base sample, the producer, the consumer conduct 100% inspection of the load of the load if the criteria has not been satisfied. Okay. So also we have studied the concept of acceptance quality label, the label which is decided by the buyer and the consumer, such that the load of that quality will be accepted. And another one is the lot tolerance proportion defective, and if the lot of this quality, then the consumer always reject the load. Now after that, we have studied the producer risk, consumer risk, and after the rectify sampling plan, we have studied the average outgoing quality, ASN, average sample number, OC curve, operating characteristic curve, ATI, average total inspection. Now we come on the single sampling plan and double sampling plan. The unit. Sir, can you please? Yes. Sorry to interrupt. Sir, can you please explain once more average total inspection? Average total inspection can be defined as the total inspection in the under the rectify sampling plan. This means that under the rectify sampling plan, some lot will be accepted on the basis of sample, and for some sample, if they are not satisfied the criteria, then we inspect the entire load. So for a sampling plan, what is the total inspection या एवरेज टोटल इंस्पेक्शन कि कुल मिला के एवरेज कितना हमने इस सैम्पलिंग प्लान के लिए कितना हमें टोटल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज कितना हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. इट इज नोन एज द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन. वी विल आल्सो discuss in this again in this unit, and how can we calculate average total inspection. Okay, so now we come on the single sampling plan. Any other query? Okay, so half of the unit we have covered in the unit 5 and 6 of single sampling plan. As we go quickly with the single sampling plan and double sampling. एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सिंगल सैम्पलिंग प्लान से आता है 7 मार्क्स का, और 7 मार्क्स का लगभग हमारा डबल सैम्पलिंग प्लान से आता है. ठीक है, और एक दो थ्योरी आती है. तो इन द सिंगल व्हाट इज द सिंगल सैम्पलिंग प्लान? A sampling plan in which we take the decision of acceptance or rejection a lot on the basis of a single sample. So this is called the single sampling plan. For example, suppose a buyer purchases cricket ball in lot of 500 from a company manufacturing cricket balls. To check the quality of the lot, the buyer draw a random. Same example है जो हमने acceptance sampling plan में लिया था कि उसमें से वो मान लीजिए 20 का inspection करता है और 20 के बेस पे ही वो lot को accept और reject कर रहा है. So this is known as the single sampling plan. So and what is the size of the sample and the acceptance number are known as the parameter of the sampling plan. Now क्या step होंगे इसके भी? Same step as we have discussed in the acceptance sampling plan and rectify sampling plan. First of all, we draw a sample of specified size from the lot, suppose n, and then we inspect each and every unit of the sample and classify as the defective
or non-defective on the basis of certain defect. Suppose the number of defective in the sample is D. Now we compare D with C. D किस compare करेंगे हम C के साथ. अगर if D is less than C, then we accept the load under acceptance sampling plan, and if D is greater than C, then we reject the load. और under rectify sampling plan में करें इसको तो क्या होगा? Then if D is less than equal to C, then we accept the load and replace all defective units found in the sample by the non-defective units. और अगर D C से greater होगा, then we accept the load after 100% inspection and replacing all defective units in the load by the non-defective units. Okay, so this is the implementation, how we can implement the single sampling plan and what is the meaning of the single sampling plan. Now this can be explained with a flow chart. First of all, we draw a sample, we count the number of defective bolts, we compare C and D. If D is less than C, then we accept the load under acceptance sampling plan, or we accept the load under rectify sampling plan by replacing all defective units found in the sample. And if D is greater than C, then we reject the load under acceptance sampling plan and accept the load after the 100% inspection by replacing all defective units under all defective units in the lot. चलिए ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल तो है. अब आता है इसमें ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक. मैंने कहा कि जो भी हमने डेफिनेशन वहाँ पे स्टडी की थी वो सब हमारी सिंगल सैम्पलिंग प्लान और डबल सैम्पलिंग प्लान में है. तो अगर हमें सिंगल सैम्पलिंग प्लान का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज ए ग्राफ बिटवीन द, नीचे क्या था एक्स एक्सिस पे, किसी को याद है नीचे क्या था? It is, sorry, always on the x-axis we take always we take the yes, we take the proportion defective, and on the y-axis we take the probability of accepting a load. So for draw operating characteristic curve, we have to find out the probability of accepting a load under different लोड क्वालिटी. यहाँ पे कुछ लोड क्वालिटी होगी, यहाँ पे कुछ होगी. इन सब के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोड निकालना पड़ेगा, फिर इनको हम प्लॉट कर सकते हैं. तो पहले सबसे पहले है कि हम ये चीज कैसे निकालें. तो हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में पढ़ चुके हैं कि PAP हम कैसे निकालते हैं. तो फिर दोबारा हम इसकी स्टडी करना है. चलिए, तो yes, so when we accept the load, we in single sampling plan, first of all हमने सैंपल लिया, फिर नंबर डिफेक्टिव काउंट कर लिए. तो मान लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव हमारे x रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल रिप्रेजेंटेड बाय x. तो हम लोड को कब एक्सेप्ट करेंगे? व्हेन x इज लेस देन एक्सेप्टेंस नंबर, लेस देन इक्वल एक्सेप्टेंस नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोड, तो हम लोड को कब एक्सेप्ट करेंगे? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू c. तो x लेस देन c का मतलब हो गया कि x की वैल्यू तो 0 होगी और 1 होगी और c होगी. सेम ऐसे ही जैसे हमने एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान में पढ़ा था. फिर दिस कैन बी these are the mutually exclusive event. So the the union of these can be written as the sum of these events. तो इनका सम हो गया. तो now we have to find out the probability x is equal to x, ये निकालना है. तो फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे भी क्योंकि हम जनरली इंडस्ट्री में हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सैम्पलिंग लेती हैं, उस केस में जो हमारा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो फॉलो करता है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद होगा, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. वहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, लोड में 2 तरह के आइटम हैं, एक तो डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव. मान लेते हैं लोड की क्वालिटी P है. तो P का मतलब क्या हो गया? P था हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो डिफेक्टिव मान लेते हैं D है हमारे टोटल लॉट में. तो D इज इक्वल टू कितना हो गया? डिफेक्टिव कितने हो गए? N इंटू P. तो टोटल डिफेक्टिव तो हो गए NP. अब नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? टोटल ऑब्जर्वेशन थी N
उसमें से अगर हम NP लेस कर देंगे तो दिस बिकम नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम we categorize the we categorize the units as defective और नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ पे हो गया हमारा NP, तो हो गया हमारा डिफेक्टिव, और N माइनस NP हो गया हमारे नॉन डिफेक्टिव। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इजिकल टू x, कि हमारा जो सैंपल है उसमें हमारे x डिफेक्टिव आ जाए, और सैंपल कितने का लिया हमने, n का। तो नीचे तो आ गया हमारा, जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नीचे था टोटल केसेस, तो नीचे तो हमने ले लिया, इसको कहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे करते हैं। तो नीचे तो आ गया हमारा टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन थी n, उनमें से आपने सैंपल लिया है स्मॉल n का, तो नीचे तो आ गया NCN, तो टोटल एग्जॉस्टिव केसेस बन गए। अब हमें कैसे सैंपल लेना है कि उसमें x तो डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव कितने थे हमारे पास, NP, तो NP में से हमारे डिफेक्टिव कितने हो, x, तो CX हो गया। और नॉन डिफेक्टिव में से नॉन डिफेक्टिव कितने थे हमारे पास, N माइनस NP, उसमें से कितने नॉन डिफेक्टिव हो, टोटल हमने लिया था n का साइज, तो इसमें से कितने रह बचेंगे अब हमारे पास, n माइनस x। तो ये हो गया हमारा हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो दिस हमने लिख दिया इसको NPCX, N माइनस NP, C N माइनस X और NCX। यहाँ पे N नहीं है, यहाँ पे सॉरी X नहीं, यहाँ पे N है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ये है स्मॉल n। ठीक है, और x की वैल्यू होते हैं 0 1 2 मिनिमम दिस। और हमने कहा क्योंकि जनरली हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है इसको निकालना, तो वी ट्राई टू मेक द अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर हमारा कैपिटल N, ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसमें हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम यूज कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाइनोमियल के लिए क्या होगा, जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी थी, इसको हम बाइनोमियल के PDF में लिख सकते हैं, NCX P raised to power x 1 minus P raised to power n minus x, and this probability can be obtained with the help of the table, binomial table। ये हम लोग फर्स्ट में कर चुके हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान में, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे हमने हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन केवल बात की थी, वहाँ PDF की फॉर्म में नहीं लिखा था, यहाँ प्रॉपर PDF की फॉर्म में लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं। तो इसको हम क्यूमुलेटिव बाइनोमियल टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर NP, N मतलब सैंपल साइज और प्रोपोर्शन डिफेक्टिव की मल्टीप्लाई करें और वो एक नंबर बन जाए, या हम कहते हैं कि अगर N बहुत लार्ज हो, N की वैल्यू लार्ज हो, मतलब अबाउ 30 हो, तो हम वी कैन से दैट के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कन्वर्ट टू द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे पाइसन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ, अगर लार्ज आपका सैंपल साइज लार्ज है, 30 से अबव है, तो हम उसके लिए पाइसन का अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए भी टेबल लास्ट में दी हुई है। तो इसके लिए e raised to power minus lambda, lambda raised to x, तो हमें लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा हो सकता है, लैम्डा क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी। एन भी आपको गिवन होगा, पी भी आपको गिवन होगा, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द लैम्डा, और लैम्डा से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टेबल। चलिए इसको भी देखेंगे, मैंने इसका भी क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। यस, तो न्यूमेरिकल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलिकॉन चिप produces chips in lot of 1000. A single sampling plan is used to test for bad outgoing lots. If the quality of the incoming lot is 0.01, calculate the probability of accepting the lots in the case when n is equal to 12 and c is equal to 1 और n is equal to 60। देखो यहाँ पे n लार्ज हो रहा है, तो n लार्ज हो रहा है तो हम यहाँ पे पाइसन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें n तो स्मॉल, ये 30 से कम है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पर कब, ये कंडीशन पहले फुलफिल होना बहुत जरूरी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते। तो देखते हैं कैपिटल N कितना गिवन है हमें। कैपिटल N है हमारा जो सैंपल लिया हुआ है वो हमारा है 1000 का, तो कैपिटल N हो गया 1000। स्मॉल n कितना है, स्मॉल n a single sampling plan is used as the quality, sorry, n is equal to 12, n is equal to 12। तो ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है, a और 10 इंटू
12 करेंगे तो 120 आएगा, तो n इज लार्ज ऑफ द 10n, तो वी कैन यूज द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए एग्जाम में करने के लिए पहले तो आप ऐसे करके दिखाओगे, ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि n इज ग्रेटर देन 10n, देन वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अगर आप डायरेक्ट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हो तो वो उस पे मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम वी कैन फाइंड आउट थ्रू द टेबल। चलिए टेबल से देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट यस, तो n कितना है हमारा, n था 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी टेबल है, टेबल नंबर 1, और यहाँ पे है क्यूमुलेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी टेबल, यानी हमें टोटल समेशन की वैल्यू देगा ये। हमें चाहिए इसमें c चाहिए, n चाहिए, कैपिटल n, स्मॉल n चाहिए और p चाहिए, ठीक है। तो हमारा है n तो है हमारा, स्मॉल n है हमारा, इट इज स्मॉल n इज 12। तो पहले 12 पे चलते हैं, यहाँ पे स्मॉल n दिया हुआ है, ये हमारा c या x है, और यहाँ p दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में p कितना गिवन था, मैं देखता हूँ। p है इसमें, अगर यहीं से देखें तो p है हमारा, आई थिंक p है हमारा 0.01। विजिबल है टेबल? Yes, sir. ठीक है, तो p है हमारा 0.01 जो फर्स्ट कॉलम में है। तो हम आगे चलते हैं। तो पहले लिया हमने n इज इक्वल टू 12, तो n 12 हो गया, और फिर c इज इक्वल टू 1 था, तो c हमारा यस, तो n 12 आया, फिर c पे गए, c हमारा 1, तो 1 पे आ गए, अब p पे जाएंगे। p हमारा है 0.01, 0.01 हमारा इसी टेबल में था, तो हमारी जो टेबलेटेड वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 0.9938, ठीक है। इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए तो वहां पे यूज करते हैं। अब विजिबल है टेबल, ये सॉरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. चल, तो फिर हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो n, तो ये आगे टेबल से 0.993 है, ओके। तो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट, 0.993। सिमिलरली अब देखना है कि भाई अगर n की वैल्यू 60 हो जाए तो वी कैन आल्सो, क्योंकि जो आपको टेबल गिवन है बाइनोमियल की वो 30 तक गिवन है, तो अगर 30 से ज्यादा है तो हम टेबलेटेड वैल्यू नहीं देख सकते वहां से। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द पाइथन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा। तो लैम्डा इज डिफाइंड एज n इंटू पी, तो n की मल्टीप्लाई हम p के साथ करेंगे। तो देखते हैं लैम्डा कितना आ गया हमारा, तो लैम्डा आ गया हमारा 0.65। 0.65 कैसे आएगा, 0.6 आएगा ना, हाँ 0.6, ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, तो 0.6 आया। तो अब हम कौन से टेबल निकालते हैं, पाइथन के टेबल निकालते हैं। तो देखिए पाइथन में हमें मेन बस लैम्डा चाहिए, लैम्डा आपके पास 0.6 है, ये याद रखना है। तो चलिए पाइथन के टेबल पे आते हैं फिर। तो ये बाइनोमियल टेबल थी, इसी में आगे पाइथन की टेबल भी होगी क्यूमुलेटिव फॉर्म में। यस, दिस इज द क्यूमुलेटिव पाइथन, ये स्पेलिंग गलत हो रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज दिस। तो यहाँ पे क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है, और ये है x को मतलब c गिवन है। तो हमारा c है 1, तो 1 तो हमारा पहले वन वन पे आ गई, फिर चलते हैं लैम्डा पे, या पहले लैम्डा पे चलते हैं। लैम्डा है हमारा 0.6, तो 0.6 हमारा कहाँ पे है, ये 0.6 है, और हमारा c कितना है, वो 2 है शायद, 2c है। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज द अवर वैल्यू 0.976
0.69, पहले 6 पे आए और फिर यहाँ पे आए तो आ गए हमारी 0.9769। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बस ये पोजीशन का एक ही क्वेश्चन कराया है और वो भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस केवल एक बार देख लीजिएगा इसको। तो 0.9769, तो ये वैल्यू हमारी इसकी होगी, तो इस टाइम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये। नाउ अगर हम अब हमें ओसी कर्व बनाना है, तो ओसी कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट लॉट क्वालिटी पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर उनको प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम आती है कि पी को हम क्या चूज करें, क्योंकि पी गिवन नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में गिवन हो जाता है पी, पर वैसे जनरली पी गिवन नहीं होता। यू हैव टू योरसेल्फ, यू हैव टू चूज योरसेल्फ। तो अब हम पी क्या लें, तो हम जनरली पी वही चूज करते हैं जिसकी हमें टेबुलेटेड वैल्यू हमें पता हो। तो हम टेबल देखेंगे पहले कि टेबल में कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सपोज ए कंज्यूमर रिसीव्स लॉट ऑफ 500, तो एन हो गया हमारा कैपिटल 500 हो गया कैंडल्स फ्रॉम ए न्यू सप्लायर। टू चेक द क्वालिटी ऑफ द लोड, द कंज्यूमर ड्रॉज वन सैंपल ऑफ साइज 20, एन इज 20 हो गया, and accept the lot if the inspected sample contains at most one defective candle। और कब लोड को एक्सेप्ट कर रहा है कि जब at most one defective candle हो, यानी C is equal to हो गया 1, otherwise he or she reject the load। कंस्ट्रक्ट द ओसी कर्व। अब ओसी कर्व बनाना है इसका, ना तो इसने पी दिया है, पी गिवन नहीं है, बस ये पता है, क्राइटेरिया पता है कि भाई क्या कब वो लोड को एक्सेप्ट करेगा। तो पहले हम वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कैसे लोड को एक्सेप्ट करेगा। तो सिंपल यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे तो पी की वैल्यू चाहिए, एन भी हमारे पास है, एक्स पी है, पी नहीं है। तो पी हम यहाँ पे वी हैव टू चूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी अकॉर्डिंग टू द टेबल, और सिंपल सिंपल वहां से वैल्यू पिकअप करना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो इन्होंने लिया 1 2 4, क्योंकि 1 के बाद 2 भी है 3 भी है, पर सभी पॉइंट्स पे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ बीच में पॉइंट जंप करते हुए जा रहे हैं। तो 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, फिर 4 6 8 10 का निकाल लिया, 12 14। आप इसमें से चाहें तो 5 मार्क्स 5 नंबर भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं टेबल पे चलता हूँ। तो इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, एन तो है 20 और सी कितना है हमारा, सी हमारा है इसमें 1। चलिए फिर वापस चलते हैं बायनोमियल के टेबल पे। यस, तो एन तो 20 हो गया, सी इज इक्वल टू 1 हो गया, और पी पी देखना है हमें, पी क्या लें। तो पी ये बहुत सारा गिवन है यहाँ पे, अब देखते हैं कौन सा लेना है। तो पी की वैल्यू देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यस, पी है 0.1 पे, 2 पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, फिर यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, 14 12 14 16 18 और 20 तक गिवन है। तो इसमें से हम कोई से भी 5-6 नंबर चूज कर लेते हैं। तो जैसे इसने लिया है 1 2 ले लिया, क्योंकि 1 और 2 पे प्रोबेबिलिटी वहाँ पे कर्व जो है वो ज्यादा चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे शुरू के 2 पॉइंट्स कंसीडर करें। फिर 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, और फिर 8 ले लिया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, केवल टेबल टेबल एक बार पहुंच जाए वहां से सिंपल सिंपल रीड करते जाना है, बार बार रीड। देखिए जैसे यहाँ पे हम 1 है हमारा, तो हमने 1 लिया, तो ये आगे हमारी इधर लिखेंगे हम। टेबल जब बनाएंगे, टेबल बनाते टाइम हम वहीं पे ही नोट करते जाएंगे इस टेबल से वैल्यू। कहाँ पे करूँ, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये तो मान लेते हैं हमारा P हो गया, और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट PA। तो P हमने कितना लिया है, 0.01 लिया, तो यहाँ 0.01 लिखा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने कितनी ली, 0.9831। C क्योंकि हमारा 1 था, तो C तो चेंज नहीं होगा, C तो 1 ही रहेगा हर बार। तो हम सीधा इस रो में से ही वैल्यू पिकअप करेंगे। तो हमारी कितनी आ गई पहली वैल्यू, 0.989831। ठीक है, फिर हमने लिया P इज इक्वल टू 0.02, तो 0.02, तो 0.02 पे वैल्यू कितनी है, 0.02 है 0.9401, 0.9401। फिर हमने लिया 4, तो 0.04, 4 पे कितनी क्या वैल्यू है, ये हमारी थर्ड वाली थी, ये 4 वाली है, 0.81, 0.8103। इस तरह से आप वैल्यू करते जाएंगे 20 तक। तो आपकी टेबल बन गई। इस टेबल को प्लॉट कर देंगे। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे P, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस लोड यानी PAP, ये ले लेंगे।
और एक ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ की जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की कर्व की शेप आती है वो लगभग ऐसे आती है, तो आपका कर्व भी लगभग इसी फॉर्म का आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है हाउ टू प्रिपेयर योर ओसी कर्व। चलिए वापस चलते हैं फिर। यस, तो ये आ गया टेबल और इसने एक ग्राफ बना लिया इन पॉइंट को लेकर, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये ओसी कर्व। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिस्क, अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना सीख लिया तो प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क भी निकल सकते हैं। तो प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है? रिजेक्टिंग ए लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल P1। तो P1 यहाँ इस बार क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस से है और हम निकाल सॉरी ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग की, तो हम निकालते हैं एक्सेप्टेंस की, तो इसने 1 माइनस कर लिया, तो P की जगह क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे P1 पे। ऐसे कंज्यूमर रिस्क होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लॉट ऑफ बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी को हम P2 से इंडिकेट करते हैं, लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव। तो हम P इस बार जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस निकालेंगे उसमें P की जगह वैल्यू ले लेंगे, P2 ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। सपोज ए टायर सप्लायर शिप्स टायर्स इन लॉट ऑफ साइज 400। तो n हो गया 400, ए सिंगल सैम्पलिंग प्लान n is equal to 10 और c is equal to 0 is being used for the load inspection. The supplier and the buyer quality control inspector decide that AQL, ये दे दिया इसने, acceptance quality level कितना है, 0.01 है, and lot tolerance proportion defective is 0.10 है। Compute the producer risk and consumer risk। तो producer risk consumer risk निकालना है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा probability of accepting a lot। तो कब लोड को हम कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब x हमारा लेस देन 0 है, यहाँ पे रख लिया। और क्योंकि हम प्रोड्यूसर रिस्क निकालना चाह रहे थे, प्रोड्यूसर रिस्क में लेंगे हम P की जगह P1, तो P की जगह P1 ले लिया, तो इस वैल्यू आ गई P1 कितना है 0.01, तो इस वैल्यू आ जाएगी टेबल से 0.8601। और प्रोड्यूसर रिस्क निकालने के लिए 1 माइनस ये कर देंगे, तो ये प्रोड्यूसर है, तो कितना परसेंट प्रोड्यूसर के 13% जो है, लगभग 14% हमारा प्रोड्यूसर रिस्क आ गया। अब कंज्यूमर रिस्क निकालना है सही, तो कंज्यूमर रिस्क में हम क्या लेना है, P को रिप्लेस करना है लॉट क्वालिटी, लॉट टॉलरेंस प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, तो यानी 0.1 से करना है। तो देख लेते हैं इसकी, चलिए वैल्यू एक बार। यस, तो n हमारा है 15, n 15 लिया, c हमारा है 0, तो 0 पे रहेंगे हम लोग, और हमें चाहिए p चाहिए 10.1, तो ये 0.01 है, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 7, 8, 9, 10, तो ये वैल्यू है 0.2059। चलिए मटेरियल देख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 0.205। ओके, तो इस तरह से हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर भी निकाल सकते हैं। सब आता है निकालने के लिए, सिंगल सैम्पलिंग प्लान में तो सभी चीजें पूछते हैं, ओसी कर्व नहीं पूछेगा, या तो खाली ओसी कर्व का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या उसी क्वेश्चन में सब चीज पूछ लेगा। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस से लोड निकालिए, प्रोड्यूसर रिस्क निकालिए, कंज्यूमर रिस्क निकालिए, आप एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी निकालिए, आप ASN निकालिए, ATI निकालिए, सब चीजें पूछेगा। तो अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। तो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी कैसे निकलेगी कि टोटल हमारे पास जो आफ्टर द रेक्टिफाई सैम्पलिंग प्लान कि हमारा पास जो स्टोर में हमारे पास मटेरियल होगा, जो लोड्स होंगे, जो यूनिट्स होंगी, उनकी क्या क्वालिटी होगी, तो हमें ये निकालना। तो ये देखिए, इसका हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला बुकलेट में गिवन है तो डेरिवेशन तो नहीं आता, तो या तो आप डायरेक्ट डिराइव कर लीजिए, या आप सिंपल इसको वहां से रीड करके रख सकते हैं। चलिए मैं एक का तो ड्राइव करा देता हूँ, उसी के बेस पे हम इसे आगे करेंगे। 1 मिनट है भी हमारे पास, शायद हो जाएगा ड्राइव। देखिए क्या है ये, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन द लोड। तो देखते हैं पहले कि भाई अगर सैंपल हमारा एक्सेप्ट होता है तो हमारी कितनी डिफेक्टिव यूनिट्स, मतलब कितनी जो यूनिट्स पहुंचेंगी उसमें कितने डिफेक्टिव्स होंगे। अगर सैंपल हमारा रिजेक्ट होता है तो हम 100% इंस्पेक्शन करेंगे, तो वहां तो उस टाइम तो एक भी डिफेक्टिव यूनिट हमारे इसमें नहीं पहुंचेगी लोड में। चलिए 1 मिनट रह गया है, तो इस कंसेप्ट को नई अगले सेशन में ले लेंगे। तो मैं फिलहाल इसे स्टॉप कर रहा हूँ, और आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा।